Hello and most welcome, my dear students. Today's most important topic that we are going to discuss in this lecture is what? Erythropoiesis, that is the formation of red blood cells. But before we start this particular topic, we must have an idea about how blood is actually formed and how it will be categorized. So I draw a chart, a simple chart for your common understanding that this is what the mother cell, that is yeah, you can see that hemocytoblast. Simply these are colony forming units, mother cells, CFU mother cells, you can say. Okay. Further, these are classified as proerythroblast, megakaryoblast, myeloblast, lymphoblast and monoblast. Okay. Proerythroblast undergo maturation process and finally form the erythrocyte, that is RBC, red blood cell, and this process is called erythropoiesis, what we have to study in this particular lecture. Okay. Megakaryoblast on the other hand, it will go on maturation and form the platelets, whereas myeloblast form three granulocytes, you can say. These are neutrophils, eosinophils and basophils, whereas lymphoblast finally mature into lymphocyte and monoblast finally mature into the monocyte. Is it clear? Okay. Now question is that where actually blood is formed? The answer is very simple. In embryo, in early embryo, you can say that in early embryo the blood is formed in yolk sac. This is the site for the formation of blood poiesis, hemopoiesis in early embryo, whereas in later embryo, in developed embryo, the hemopoiesis is now shift towards the liver and spleen. Liver and spleen. Is that clear? Whereas in newborn infant and so on up to the end of life, this hemopoiesis normally shifted to the red bone marrows. Red bone marrows. Is it clear? So this is how the hemopoiesis shifts in different stages of life. In early embryo, hemopoiesis will take place in the yolk sac. In late embryo or developed embryo, the hemopoiesis will shift to the what? Liver and spleen. And in a particular mature embryo, or you can say the infant and up to the end of life, this will take place in the red bone marrows. Is it clear? Okay. Now, question is that how this hemopoiesis will initiated, how it actually takes place. So, answer is very simple. It is under the influence of erythropoietin hormone. But you must note that erythropoietin is absent in embryo. So the hemopoiesis in embryo is still a puzzled factor, and we are trying to solve it at our best. Okay, now let's begin with this story, that is erythropoiesis. Have a screenshot, please. So now for our basic understanding, we must know the exact location of the erythropoietin activity, the secretion, from where it will be secreted. So it is the kidney from where juxtaglomerular nephrons are there. Surrounding this, there are peritubular capillaries. The endothelial cells of these peritubular capillaries have special sense
to identify the partial pressure of the blood, that at which time oxygen will be less in the blood, at which time oxygen will be more in the blood. So whenever these cells sense the low oxygen, the low partial pressure of oxygen, they secrete erythropoietin. They secrete erythropoietin, which goes to the bone marrow, which is the site for the blood formation. Okay, that is hemopoiesis, and in very particular sense we are studying about the erythropoiesis. So erythropoietin is one of the best messenger to give the message to the bone marrow, please initiate your factories to start the more and more production of RBC, as the peritubular capillaries sense very low oxygen in the blood. So this is how the formation of erythrocyte, or you can say the erythropoiesis, will take place. In common term, this is how the hemopoiesis will be takes place, formation of blood. Some other factors are there, like erythropoietic stimulating factors, ESF. These are the humoral factors that also give responses to initiate the erythropoiesis. Other factors are vitamin B12. Vitamin B12, we can say that, vitamin B12. And folic acid, also folic acid. So these two minerals also provide platform to facilitate the formation of blood, that is especially what, erythropoiesis. Now where it takes place? Erythropoiesis will take place in the bone marrow. So now we move to the bone marrow and see how actually erythropoiesis will take place. Please have a screenshot of these. ओके, तो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं एरिथ्रोपोएसिस, जो कि एरिथ्रोपोएटिक और कुछ एरिथ्रोपोएटिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के प्रेजेंस में होता है, और ये प्रोसेस बोन मैरो हाउस में हो रहा है, यानी जहाँ पे बोन मैरोज हैं. ठीक है, तो इस एरिथ्रोपोएसिस में कॉपी पेन उठा लीजिए और चेक करते रहिए. मैंने ऑलरेडी डायग्राम्स इसीलिए बना दिए कि थोड़ा फास्ट हो जाए लेक्चर. प्लूरीपोटेंट सेल्स, जिसको कि आप स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं, मदर सेल्स टू ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स विच आर फॉर्म्ड. ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल फर्दर लिम्फॉइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल में डिवाइड हो जाती है. इसका एक ब्रॉडर आउटलाइन पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं. हमें क्या पढ़ना है, इस माइलॉइड स्टेम सेल की आगे की प्रोसेस को पढ़नी है, हमें पर्टिकुलरली एरिथ्रोपोएसिस की बात करनी है. देन ये डिफरेंशिएट होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड एंड माइलॉइड. नॉर्मल प्रोसेस है एरिथ्रॉइड एंड माइलॉइड. और दूसरी जो टाइप की कैटेगरी सेल्स बनती है वो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. दिस इज फॉर द मोनोसाइट मैच्योरेशन एंड दिस इज फॉर द जी, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स मैच्योरेशंस. तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये WBC में, और फिलहाल हमारा फोकस यहाँ रहने वाला है स्पेशली फॉर द ई, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स. मेगा कैरियर्स को छोड़ देते हैं, एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं. तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जो कि नॉर्मली 20 माइक्रॉन्स की होती हैं, डिवीजन करते हैं, माइटोसिस मैच्योर होती है, एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या एरिथ्रॉइड या एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में ये मदर सेल्स हो गए. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गए. जब ब्लास्ट वर्ड आ जाता है सेल के साथ, जैसे नॉर्मोब्लास्ट, एरिथ्रो, क्योंकि यहाँ पे पिछले जो चार्ट में देखा था वहाँ पे नॉर्मोब्लास्ट लिखा था. बहुत सारे ऑथर नॉर्मोब्लास्ट लिखते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, बहुत सारे ऑथर अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं. बट हम एक ऐसा पाथवे, ऐसा नाम यूज़ करेंगे जिसमें थोड़ा कम कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि ये ब्लास्ट और सेल में बहुत कन्फ्यूज़न है, इसको समझते हैं. तो ब्लास्ट वर्ड जब भी यूज़ होगा इसका मतलब कि वो हाईली प्रोलिफरेटिव सेल है, बहुत जल्दी जल्दी उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है. इज इट क्लियर? ओके, सो कैन आई जूम दिस? ओके, वेरी गुड. Now this is what pro-erythroblast.
इट इज ऑफ साइज 20 माइक्रोन। देखिए मैच्योरेशन की प्रोसेस में 3 तरह के मैच्योरेशन होंगे। पहला होगा साइज का मैच्योरेशन, दूसरा होगा न्यूक्लियस का मैच्योरेशन और तीसरा होगा साइटोप्लाज्म का मैच्योरेशन। साइटोप्लाज्मा का मैच्योरेशन। सो साइज मैच्योरेशन, न्यूक्लियर मैच्योरेशन एंड साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन विल टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ऑब्जर्व करते रहिए, ये सभी मैच्योरेशन आपको एक साथ पता चल जाएंगे कैसे हो रहे हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, इसको आप ओपन कह सकते हो। ओपन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, ओपन का मतलब खुल नहीं गया है। ओपन का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन्स होंगे वो लूज होंगे, यू क्रोमैटिन्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। यू क्रोमैटिन यहाँ क्या होंगे, यू क्रोमैटिन होंगे। तो जो प्रो एरिथ्रोसाइट है वो कैसे क्रोमैटिन को लेता है, यू क्रोमैटिन, यानी हाईलाइट ट्रांसक्रिप्शन वाले एरिया को लेता है। अच्छा ऐसा क्या है भाई, यू क्रोमैटिन क्यों ज़रूरत है, मैच्योरेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। यू क्रोमैटिन्स रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन हमें कौन से चाहिए, यहाँ पे हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा बनने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर्स चाहिए। तो यू क्रोमैटिन वो रीजन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और उसके बाद फिर आरएनए बनेगा, वो ट्रांसलेशन करेगा। अब इसके लिए भाई प्रोटीन बनेगी तो राइबोसोम चाहिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलाई, यू कैन सी कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई भी बहुत सारे हैं, है ना। न्यूक्लियोलाई क्या है, वो सेंटर है जहाँ पे राइबोसोम असेंबल्ड होंगे, यानी खूब ढेर सारे राइबोसोम बनेंगे और फिर साइटोप्लाज्मा में जाएंगे ताकि प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को कंप्लीट करें। हमें खूब ढेर सारा हीमोग्लोबिन चाहिए होगा। हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बनेगा सेल रेड होती चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो शुरू में यू क्रोमैटिन है, इसमें आरएनए भी होगा और राइबोसोम भी होगा। सो डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम ये तीनों ही बेसोफिलिक नेचर के हैं, यानी बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। तो शुरू में ये ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। तो साइटोप्लाज्मा हमारा कैसा दिखेगा, ब्लूइश। साइटोप्लाज्मा कैसा दिखता है शुरू में, इट इज कंप्लीटली ब्लूइश इन नेचर। देखते रहिए मैच्योरेशन, ठीक है। साइज देखेंगे तो ये लगभग 20 माइक्रोन है, आप देख रहे हैं 20 माइक्रोन है। इज इट क्लियर। और न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है, इट इज ओपन प्लस बिग, ओपन प्लस बिग, समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे इसमें मैच्योरेशन होगी तो प्रोसेस आगे बढ़ी। नाउ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम बन चुके हैं। हैवी अमाउंट ऑफ राइबोसोम एज वेल एज आरएनए फैक्टर्स आर देयर। और डीएनए भी रहेगा बट आरएनए और राइबोसोम बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हैवीली बेसोफिलिक स्ट्रक्चर शो करता है। और आप इसीलिए, since I haven't blue color, so I use green and black combination to show the blue color. Okay, so this is what basophilic erythroblast, and size will now reduce somewhat up to 17 micron. 17 micron. So size will be reduced here further. It becomes 17 micron. Is it clear? And still it is very dark blue in color. ठीक है। न्यूक्लियस का साइज बट नेचुरल है, थोड़ा सा कंडेंस हो गया न्यूक्लियस और रिड्यूस हो गया। सो रिड्यूस, यू कैन राइट दैट इट इज रिड्यूस स्लाइटली। रिड्यूस स्लाइटली, एम आई क्लियर। फर्दर अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारा राइबोसोम बन चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, अब ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, ट्रांसलेशन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। इसी की तो ज़रूरत थी, हीमोग्लोबिन बनेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा कि कुछ रेड कलर के पार्ट दिखने लगेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर के डाई को एक्सेप्ट करता है, एसिडोफिलिक है। ये कैसा है, एसिडोफिलिक है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी बेसोफिलिक ही है, यानी स्टिल अभी वहाँ पे क्या है, वर्क चल रहा है। अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जुटे हैं, यानी वो राइबोसोम है, पॉलीराइबोसोम कंडीशन कह सकते हैं। तो राइबोसोम्स हैं, इसीलिए
ग्रीन ब्लू इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। एंड दिस इज व्हाट पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट कलरफुल है ना, एकदम रंगीला मिजाज का है। तो पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट यहाँ पे बना। साइज फर्दर कुछ ना कुछ रिड्यूस ही होती है, 14 माइक्रोन हो चुका है अब यहाँ पे। न्यूक्लियस की साइज बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और ये लगभग अब निकलने वाली कंडीशन में, यानी इजेक्ट होने वाला है सेल के बाहर। इसके बाद ये जितनी भी साइट हैं जो ग्रीन और ब्लू आपको दिख रहे हैं, मतलब ब्लूइश कलर के दिख रहे हैं, बेसोफिलिक हैं, धीरे धीरे वहाँ से पूरी तरह से वो साइज वो साइटोप्लाज्मा से रिड्यूस होते जाएंगे और उसकी जगह क्या होगा, मोर एंड मोर हैवी कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी फॉर्म्ड। तो हैवी कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जब बनेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा रेड कलर का दिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ hemoglobin and reduced amount of what these blue color structures, that is DNA, RNA and ribosomes especially। तो राइबोसोम भी अब यहाँ पे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच heavy amount of hemoglobin is present and it appears to be red। This is what orthochromatic, you can say erythroblast। अब इसको नॉर्मली एरिथ्रोब्लास्ट नहीं कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है लेट एरिथ्रोब्लास्ट, बट इसको हम एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं या नॉर्मोसाइट कह सकते हैं। दिस इज व्हाट नॉर्मोसाइट, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो चुका है और इट इज़ जस्ट टू रिलीज, जस्ट अब निकलने ही वाला है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ट्रांसलेशन ऐसा कुछ हो नहीं सकता और ये प्रोलिफरेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो प्रोलिफरेट ये कर नहीं सकते, यू कैन सी बहुत इजीली दिख रहा है। अगर ये प्रोलिफरेट कर ही नहीं सकते हैं तो फिर हम इसको ब्लास्ट नहीं बोलते, पर पता नहीं होता है, कुछ ऑथर्स ने ब्लास्ट लिखा है प्लीज़, लेकिन समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जिसमें प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी गायब हो गई है वो नॉर्मल सेल हो गई है, ठीक है, और जिसमें हाई कैपेसिटी ऑफ प्रोलिफरेशन होगा उसको हम ब्लास्ट कहेंगे। तो ब्लास्ट और साइट में एक डिफरेंस यही है, सेल और नॉर्मल सेल और ब्लास्ट वाले जो सेल्स होती हैं, ब्लास्टोमियर्स होती हैं, नॉर्मल डिफरेंस है ये। तो ऑर्थोक्रोमैटिक हो चुका है, साइज फर्दर रिड्यूस हो चुका है, साइज विल फर्दर रिड्यूस टू 10 माइक्रोन। आप देख रहे साइज में मैचुरेशन हो रहा है, साइज फर्दर रिड्यूस होती जा रही है, 14 फिर 10, है ना, और फिर फाइनली हमारा वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रेटिकुलोसाइट या एरिथ्रोसाइट कहते हैं, अर्ली एरिथ्रोसाइट। क्या है कि जो अर्ली एरिथ्रोसाइट बनता है इसको रेटिकुलोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से न्यूक्लियस तो निकल जाता है और न्यूक्लियस फिर क्या हो जाए, माइक्रोफेज हो जाएगा। हमारी बॉडी में तो सेल पहले से तैयार है, कोई न्यूक्लियस निकल जाए उसको भी माइक्रोफेज कर लेंगे, चाहे वो किसी सेल का ही हो, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कुछ रिमेनिंग पार्ट भी हैं जो हमारे ब्लू कलर के स्ट्रक्चर थे, यानी राइबोसोम की जो फैक्टरीज बनी हुई थी हमारे पास, अभी भी उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है, तो रेटिकुलेट वेनेशन बनाता है ना, कुछ लगता है नेटवर्क है, जाली बनी हुई है, तो इसलिए इसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। इस स्टेज में ही ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं और हमारे ब्लड के वॉल्यूम में लगभग 1 से 2%, 1 to 2% इन normal human blood they are present in this concentration, that is 1 to 2%, these are reticulocyte। further अगले 2 से 3 दिन में, 2 दिन में ही समझ लीजिए ये पूरी तरह से मेच्योर होते हैं और इनका ये जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है, यानी जो ब्लूइश स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरी तरह से गायब हो जाता है और सिर्फ हैविली हीमोग्लोनाइज्ड आरबीसी बचती है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट। तो आपने देखा मैचुरेशन में क्या हुआ, साइज धीरे धीरे मैच्योर हो गई और ये नॉर्मली 7 to 8 माइक्रोन की साइज का बच जाता है एकदम मैच्योर से। तो साइज में जो मैचुरेशन हुआ आपने देखा 20 माइक्रोन से शुरू हुआ और ये फाइनली कहाँ जाके रुका, ये जाके रुका 7 to 8 माइक्रोन पे। दूसरा, न्यूक्लियस में जो मैचुरेशन होता है तो न्यूक्लियस पहले ओपन होता है, क्लोज होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है और फाइनली मैच्योर आरबीसी में तो ये पूरी तरह से बाहर ही निकल जाती है। ये समझ में आ गया। तीसरा, साइटोप्लाज्मा का मैचुरेशन कैसे हुआ, तो साइटोप्लाज्मा शुरू में बिल्कुल ब्लूइश था, डार्क ब्लूइश था, फिर और इसके बोलते हैं जैसे जैसे और आरएनए बनते चले गए, डीएनए और राइबोसोम
और ज़्यादा एक्टिव होते चले गए, और भी ज़्यादा ब्लूइश हुए। फिर जब ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया, यानी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हुआ, तो आपने देखा कि साइटोप्लाज्मा कुछ पार्ट रेड और कुछ पार्ट ब्लूइश है, यानी अब चेंज आना दूसरी तरह का मैचुरेशन का सेकंड स्टेज शुरू हो चुका है। तो ऑर्थोक्रोमैटिक, यहाँ पे अब पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। इसके बाद ऑर्थोक्रोमैटिक आपका नॉर्मोसाइट बनेगा, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। तो अब साइटोप्लाज्मा का नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। जो अभी तक कलरफुल दिख रहा था, ब्लूइश और रेड कलर का दिख रहा था, उसके पहले ब्लूइश दिख रहा था, अब ये रेड दिखने लगा। समय बदल गया, दिल बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। यानी अब ये रेड हो गया, बहुत ज़्यादा रेड हो गया। तो यहाँ से अब वो सेल, वो आरबीसी जिसको कि हम जानते हैं कि रेड होती है, उसकी प्रोसेस शुरू होती है। इसके बाद फर्दर कुछ रेमिनेंट्स ही रह जाते हैं, न्यूक्लियस पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और ये रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो गया। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं 99% पार्ट इसका रेड हो गया, 1 या 2% बच गया है, जो कि आपके पॉलीराइबोसोम्स के नेटवर्क के फॉर्म में बचा हुआ है। इस कंडीशन में ये ब्लड में आ गया और इनका टोटल वॉल्यूम पूरे ब्लड के वॉल्यूम में 1 से 2% हो सकता है। देन फर्दर मैचुरेशन होगा और ये जो रेटिकुलेट टाइप का स्ट्रक्चर है ये भी गायब हो जाएगा। अब 100% रेड साइटोप्लाज्मा हमारे पास है, यानी सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन बची है। तो साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन भी आपने देख लिया। कहीं कोई दिक्कत है? इस पूरी स्टोरी में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आई होगी। 3 तरह के मैचुरेशन आपने देख लिए, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिथ्रोपोएसिस। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत हो, यू आर फ्री टू आस्क। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।